Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Today we will start exercise of chapter 4. First is filler. For a force to come into play, the two concerned bodies must be dash with each other. Force जब अप्लाई करेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट पे तो टू बॉडीज शुड बी इंटरेक्ट विद ईच अदर. इंटरेक्शन शुड बी इधर पुश और पुल. दैट मीन्स देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन them. Next is to draw water from a well, we have to dash the rope. We have to pull the rope. Read this question carefully. We are drawing water. वाटर ड्रॉ कर रहे हैं तो रोप को पुल करना पड़ेगा, और अगर हम बकेट को थ्रो करते हैं दैन वी विल पुश इट. तो पुल और पुश को ध्यान से समझ के आपने अटैम्प्ट करना है. नेक्स्ट है एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स डैश एंड डैश. अनबैलेंस्ड फोर्स मीन्स if we are applying force on an object then it will change its speed as well as direction. When direction will change? When force is applied at any angle. In the game of cricket, the balls falls when the ball strike them. This is an example of dash force. This is example of contact force, because cricketer and ball both are in direct contact with each other. The force responsible for raising our body here when we try to take off a synthetic shirt in dry weather condition is a dash force. You have observed that in dry weather or in winters when you remove shirt there becomes some charge, and this is a type of electric force. What type of force will exist here? Electric force. The atmospheric pressure dash as we move towards higher altitude. As you know that when we move at height then pressure will decreases, but in depth pressure will increases. In this case height is given to you, so when we move to height then pressure will decreases. Next is statement. You have to tell whether this is true or false. First is effect of force may change by changing the direction of applied force. Effect of force may change when direction by changing the direction of applied force. जब आप force की direction को change करोगे तो effect of force क्या होगा? Change होगा. यस ट्रू है ये, क्योंकि जब आप फोर्स को चेंज करोगे तो डायरेक्शन में चेंज आता है, तो डायरेक्शन में चेंज हुआ तो इसका मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स में भी चेंज होगा. अ फोर्स हैज़ टू बी स्पेसिफाइड बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन. यू ऑल नो दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. Frictional force is example of non-contact force. This is wrong statement because frictional force is example of contact force. Contact means when two objects are in direct contact with each other, then this type of force is called frictional. But in this statement you are given that force is non-contact, so this is false statement. Next is a gas-filled balloon moves up. The upward force acting on it smaller than the force of gravity. This is also false statement. Upward force is greater than gravitational force, that's why balloon is moving in upward direction. बलून कहाँ मूव कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में. तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब जो अपवर्ड फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगा, और एयर इसके अंदर फिल है, एयर लाइटर होकर कहाँ मूव करेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में. बट इसमें कह रहा है कि अपवर्ड फोर्स स्मॉलर है, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी? रॉन्ग, फॉल्स है ये स्टेटमेंट. वी कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ गिवन फोर्स बाय इंक्रीजिंग द एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट. यू ऑल नो दैट फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, एंड यू वेल नो दैट व्हेन वी डिक्रीज एरिया देन प्रेशर विल increases. In this statement same thing is given to you. We are increasing area, so obviously if area is more then pressure will be less, because area and pressure both are inversely proportional to each other. Inversely means inverse.
That means if we increase one thing, then other thing will automatically decrease. In this case area is increases, that means area ज़्यादा given है आपको, तो pressure क्या होगा इसके अंदर कम होगा. So this statement is true. Next is inside a bottle filled with water, pressure is least at the bottom and greatest at the surface of water. This statement is also false. Why? Because at bottom pressure will be more, but he is saying that pressure is least at bottom. आपको पता है कि बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, बट ये कह रहा है कि प्रेशर जो है वो बॉटम में लेस है, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी? फॉल्स. नेक्स्ट कम टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड ऑपोजिट, देन दीज फोर्सेस do not move the object but may cause a change in its shape, because this type of force is balanced force. Balance means equal force लग रहा है दोनों साइड से बट डायरेक्शन अपोजिट है. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स लगाएंगे बट डायरेक्शन इज अपोजिट, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, एंड बैलेंस्ड फोर्स डजंट मूव द ऑब्जेक्ट. बैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा बट उसके शेप में चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप स्प्रिंग को दोनों साइड से उसको पुश या पुल करोगे तो उससे क्या होगा? स्प्रिंग के शेप में चेंज होगा बट वो मूव नहीं करेगा अगर दोनों साइड से फोर्स इक्वल लग रहा है तो. नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द नेम ऑफ सम ऑफ वेल नोन फोर्सेज. ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर, मैग्नेटिक, फ्रिक्शनल फोर्स, दीज आर टाइप ऑफ फोर्सेज. आउट ऑफ दीज कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर. कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन सी होंगी बेटा? मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल, B and D. These are contact forces, and rest of two, gravitational and magnetic, are नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. कॉन्टैक्ट मीन्स मस्कुलर फोर्स, जब हमारी मसल फोर्स अप्लाई करती हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं तो वो हो जाएगा मस्कुलर. फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे मूव करता है तो अर्थ पे मूव करने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप कर जाता है कुछ टाइम के बाद. तो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्सेज के आपसे पूछे थे टाइप, तो आप क्या बताओगे? मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट इज रोहिणी इज पुशिंग अ बॉक्स टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन विद अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F. एक गर्ल है रोहिणी, वो F फोर्स लगा रही है और बॉक्स को मूव कर रही है वेस्ट डायरेक्शन में. टू हेल्प हर मूव द बॉक्स फास्टर इन द सेम डायरेक्शन, हर फ्रेंड शुड. उसकी फ्रेंड भी फोर्स लगाना चाहती है, मतलब ताकि बॉक्स जो है वो फास्टर स्पीड से मूव कर सके सेम डायरेक्शन में. अगर सेम डायरेक्शन में मूव कराना है तो उसकी फ्रेंड को भी फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? वेस्ट डायरेक्शन में. अब वेस्ट में वो पुश करेगी या पुल करेगी? स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करो. रोहिणी इज पुशिंग अ बॉक्स. रोहिणी पुश कर रही है तो उसको भी पुश करना पड़ेगा, और पुश किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा? वेस्ट में, क्योंकि रोहिणी इज ऑल्सो पुशिंग इन वेस्ट डायरेक्शन. व्हेन वी अप्लाइंग फोर्स इन सेम डायरेक्शन देन इट विल increases the speed of object. In this case we want to increase the speed of object, so her friend should push the box in west direction. Next is a container is filled with water as shown in the figure. As you can see there are 3 points given to you, point A, B and C. Which of the following statement is correct about the pressure of water in this container? तो आपको बताना है किस कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा लगेगा. एज यू कैन सी दैट C पॉइंट इज एट बॉटम, सो एट डेप्थ प्रेशर विल बी मोर, और यू कैन से एट बॉटम देर विल बी मोर प्रेशर. एज you can see that C is at bottom, so there will be more pressure at C point. So your answer will be pressure at C is greater than pressure at B, and pressure at B is greater than pressure at A. Pressure at A will be least. Why? Because A point is at height, and you know that when we move in upward direction then pressure decreases. At the bottom pressure will be highest, so pressure will be more at C point. क्लियर हुआ बेटा? 3 पॉइंट आपको गिवन है. सी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि सी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? बॉटम पे. बॉटम पे हम जब मूव करते हैं तो बॉटम में ज़्यादा प्रेशर लगता है, और ए पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप मूव करते हो तो प्रेशर कम हो जाता है. सो योर करेक्ट सीक्वेंस विल बी pressure C, then pressure B and pressure A. Next is an empty
metal bottle has to be placed on a table so that it exert the maximum pressure on the surface of table. As you can see that there are three positions, position A, position B and position C. So you have to tell in which condition there will be maximum pressure. Maximum pressure will be at position B. Why? Because at B position there is less area, and you know that when area will be less then pressure will more, because pressure and area both are inversely proportional to each other. B केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एरिया स्मॉल है. एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा. सबसे ज़्यादा आपको एरिया कहाँ पे दिखाई दे रहा है? इन केस सी. तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर कम किस केस में होगा, देन प्रेशर विल बी लेस एट पोजिशन सी and pressure will be maximum at position B, because at position B there is a less area. When we next is when we press the bulb of a dropper with the nozzle kept under the water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. If we then release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to atmospheric pressure. ड्रॉपर में जब आप ड्रॉपर को के नोज़ल को जब आप पुश करते हो तो इससे क्या होगा? वाटर राइज हो जाता है ड्रॉपर में. दिस इज़ बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बेस्ड होगा ये. किस लिए? क्योंकि नोज़ल के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और आउटर साइड से प्रेशर ज़्यादा लगेगा. आउटर साइड से प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से इसके ड्रॉपर के अंदर वाटर फिल हो जाएगा. So this is based on atmospheric pressure. Next is length, width and height of given rectangular box are 100 cm, 50 and 20 cm. This box is kept on the ground in three different ways, one by one. Which of the statement is correct about the pressure exerted by this box on the ground? प्रेशर आपको मैक्सिमम बताना है, एंड यू नो दैट प्रेशर विल बी मैक्सिमम व्हेन एरिया विल बी स्मॉल. एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा. अब देखो आपको थ्री वैल्यूज़ गिवन है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, एंड यू नो फॉर्मूला ऑफ एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. अगर आप लेंथ को 100 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे देन योर आंसर विल बी 5000. 100 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे देन योर आंसर विल बी 2000. 50 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आएगा? 1000. दैट मीन्स आपको इस तरह से अरेंज करना है कि एरिया लेस रहे. तो एरिया लेस कब होगा? जब आप उसको विड्थ एंड हाइट वाइज लेके चलोगे, क्योंकि विड्थ एंड हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 50 एंड 20. 50 और 20 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों केसेस में एरिया स्मॉल कब आएगा? जब आप विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे. विड्थ एंड हाइट वाइज जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम. एक बार दोबारा से सुनो बेटा, आपको थ्री वैल्यूज़ गिवन है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट. व्हेन यू मल्टीप्लाई लेंथ विद विड्थ देन योर आंसर विल बी greater. That means when you multiply 100 with 50 then your answer will be 5000. When you multiply 100 with 20 answer will be 2000, and when you multiply 50 by 20 then your answer will be 1000. 1000 means you are putting object breadth and height wise. When you are putting object breadth and height wise, the area will be less, and in less area pressure will be more. So its a correct option will be third. Now come to part D question answer. First question is, in the following situations identify the agent exerting the force. Agent means which producing force. First is squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice. आप लेमन को स्क्वीज़ करते हो उसका जूस निकालने के लिए, तो क्या एजेंट वर्क कर रहा है? मतलब फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होगा? एजेंट मीन्स फोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? आपकी मसल्स और फिंगर्स. स्क्वीज़ करोगे तो फिंगर से स्क्वीज़ करते हो ना, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा? चेंज इन शेप. लेमन की शेप में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज अ पर्सन डाइविंग इनटू अ स्विमिंग पूल. पर्सन जब स्विमिंग पूल में है तो एजेंट मतलब फोर्स जो लगाएगा वो कौन लगाएंगे? आपके कौन प्रोड्यूस करेगा? मसल्स ऑफ हैंड्स एंड बॉडी, क्योंकि जब स्विम कर रहा है कोई पर्सन तो अपने हैंड्स और बॉडी को मूव कर रहा है.
नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट क्या होगा? चेंज इन पोजिशन. अ लेबरर मूविंग अ लोडेड कार्ट. कार्ट को मूव कर रहे हैं तो कार्ट किससे मूव होंगे? मसल से. बॉडी मसल्स वर्क कर रही हैं यहाँ पे. सो चेंज इन द कार्ट ऑफ पोजिशन. इसमें क्या होगा? कार्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा जब आप लोडेड कार्ट को मूव करते हो. अ कार कमिंग टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ. यहाँ पे एजेंट क्या है? फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंजन. इंजन ने क्या किया? स्विच्ड ऑफ कर रहे हो तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. पहले ऑब्जेक्ट मोशन में था तो अब उसकी मोशन जो है, मूवमेंट, उसमें चेंज आ जाएगा. नेक्स्ट इज एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर अ बार एट अ सर्टेन हाइट. देयर आर मसल्स ऑफ एथलीट. एथलीट क्या कर रहा है? हाई जंप कर रहा है. तो हाई जंप करेगा तो उसकी मसल्स वर्क करेंगे. यहाँ पर चेंज किस में होगा? चेंज इन अ पोजिशन. सेकेंड क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट नॉन ज़ीरो फोर्स. इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विद द कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ऑब्वियसली अब जब किसी ऑब्जेक्ट पे नॉन ज़ीरो फोर्स, मतलब फोर्स ज़ीरो नहीं है, फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है. अब फोर्स की कुछ वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद कॉन्स्टेंट स्पीड. तो आप आंसर क्या बताओगे? यस, ऑब्जेक्ट विल मूव. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड मीन्स इफ द अप्लाइड फोर्स इज ज़ीरो. नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो जाएगा देन इट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड मीन्स इफ द नेट अप्लाइड फोर्स इज नॉन ज़ीरो. जो हम नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर वो ज़ीरो नहीं है तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन वेयर फोर्स इज मैक्सिमम. अनबैलेंस्ड में मतलब किसी एक साइड से ज़्यादा फोर्स लगेगा और जिस साइड से फोर्स ज़्यादा लगेगा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है. नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट मीन्स व्हेन टू बॉडीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल एंड मस्कुलर फोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज. Contact means when two bodies are in direct contact with each other. Next is non-contact force. Non means when two bodies are not in direct contact with each other, then this type of force is called non-contact force. Example gravitational, magnetic and electric force. You all are familiar. You all have studied in chapter 4. Next, when we throw a ball upwards. ये टूवर्ड्स नहीं है बेटा, अपवर्ड्स गिवन है. जब आप बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फॉल कराओगे, व्हाट हैपन टू इट्स स्पीड्स व्हाइल इट इज़ गोइंग अप. जब बॉल ऊपर जा रही है तो इसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स, यहाँ टूवर्ड्स की प्लेस पर बेटा अपवर्ड कर देना राइट आप. इट्स स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग. अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड इसकी डिक्रीज हो जाती है. रीज़न ड्यू टू ग्रेविटी. क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ इज अप्लाइंग अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट विल मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इट इज क्लियर टू यू. व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स इट्स स्पीड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. जब आप किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फॉल कराओगे तो स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज होगी उसकी. किस लिए? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बॉल की स्पीड को डिक्रीज कर देगा. नेक्स्ट है नेम द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनवर्ड मोशन. इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ये पर्सन जो है ना वो पैराशूट के साथ आपको दिखाई दे रहा है एज यू कैन सी इन पिक्चर इन योर बुक. नाउ नेम द फोर्स. दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और यू कैन से फोर्स ऑफ ग्रेविटी. पैराशूट के साथ में ये पर्सन और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. And as you know that gravitational is a type of non-contact force because this person and earth are not in direct contact with each other. Next, will the man come down with the same speed without parachute? पैराशूट के बिना क्या ऑब्जेक्ट जो पर्सन है वो सेम स्पीड से नीचे आएगा? नो, बिकॉज एयर फ्रिक्शन विल बी बिकम लेस. क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा. मतलब बिना पैराशूट के पर्सन ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे आएगा. एयर फ्रिक्शन मीन्स एयर भी एक फोर्स लगाती है. हाउ वुड द प्रेशर चेंजेस इफ एरिया इज डबल्ड. अगर आप एरिया को डबल करोगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रेशर विल बी हाफ बिकॉज एरिया एंड प्रेशर बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. प्रेशर हाफ हो जाएगा जब आप एरिया को डबल करोगे क्योंकि एरिया अपॉन में आएगा
है ना। तो 1/2 का मतलब प्रेशर क्या हो गया, हाफ। जब आपने एरिया को डबल किया तो प्रेशर विल बिकम हाफ। नेक्स्ट है थ्रस्ट को डबल कर रहे हो, थ्रस्ट को डबल करोगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल a diver experience a greater pressure 100 centimeter below the surface of water or 200 centimeter below the surface of water? So your answer will be 200 centimeter below the surface of water pressure will be high, because as you know that at depth pressure increases. So 100 out of 100 and 200 centimeter is more deep, so at depth there will be more pressure. So today your work is you have to write and learn exercise and part D question answer. Okay beta.